My dear students, how are you? Hope you all are enjoying our videos. On behalf of Jet Kids International School, I welcome you all in this virtual class. Children, today I am going to teach you lesson number 5. The name of the lesson number 5 is Means of Communication. And in this video, I am going to teach you about the journey of a letter. Yes, children, in the previous video, we studied about the early means of communication. Now, in this video, we are going to study about journey of a letter. So, are you ready? Yes. So, let's go. See, children, in the picture, you can see these are the letters which somebody wrote to someone. Yes, so these are letters. So children, if you are having your book, please open it, page number 53. Journey of a letter. How would you communicate with your friend living in another city in the absence of phone? See, children, nowadays we all are using modern means of communication. As I told you yesterday in the previous video, that we are using phone, computers, yes, all these things we are using, television. Okay, so all these are the modern means of communication. So if we want to call any of our friend or relative who is not near us, who is living somewhere else, or he is very far from us, or in another country, so it is very easy to communicate with that person by using the modern means of communication, correct? But suppose, imagine that if you are not having phone and if you want to communicate with your friends living in another city, so what you will do for that? Yes, you will use letter. Yes, children, before, people, when there was no modern means of communication, people use this means of communication, that is the letter. So let's study about that. See, children, after learning about the early means of communication which is used in so, children, after learning about the early means of communication used in the ancient time, Champak decided to write a letter to invite his friends, John, to his birthday party. Champak lives in Delhi and John lives in Gurgaon. Okay, children. So, what happened here? After learning about the early means of communication, we know what you mean by early means of communication used in the ancient time. Okay, children, जो पुराने ज़माने में, जो प्राचीन काल में, जब ये सारे फोन्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तब लेटर भी नहीं होते थे, तब लोग क्या करते थे? अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, ओके, वो यूज़ करते थे. तो चंपक ने क्या डिसाइड किया? टू राइट अ लेटर. वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है. उसका फ्रेंड है जॉन, टू हिज बर्थडे पार्टी. ओके, सो वाई ही चंपक इज इनवाइटिंग जॉन? बिकॉज हिज बर्थडे इज देयर, सो ही इज हैविंग अ बर्थडे पार्टी, सो ही इनवाइट हिज फ्रेंड बाय राइटिंग अ लेटर. Okay, so Champak lives in Delhi because Champak lives in Delhi and his friend John, he lives in Gurgaon. So let's see what happened next. So he wrote one letter. See the letter. Dear John, you are invited to my birthday party on the 1st of January. My parents are organizing a fun party at home. My mother will bake a cake and there will be wafers and lemonade. Tasty. I will be very happy if you come to the party. So best wishes, Champak. Okay, so who is writing this letter? Champak. To whom? To John. So by writing letter, he invites John for his birthday party. After writing the letter, Champak shows it to his mother. See in the picture, he is showing the letter to his mother. Then what happened? Mother, could you help me send this letter to John? And he asked to his mother, that mother, can you help me to send this letter to John? So what mother is saying? Of course, I will let you go to the post office. I will. Her mother is saying, of course I will. मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, क्योंकि मुझे पोस्ट करना कैसे है वो चंपक को नहीं पता. ओके, सो हर मदर से ओके लेट्स गो टू द पोस्ट ऑफिस. सो चिल्ड्रेन, लेटर पोस्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? पोस्ट ऑफिस. ओके, एट द पोस्ट ऑफिस, सी एट द पोस्ट ऑफिस चंपक एंड हिज मदर बाय अ स्टैम्प एंड एन एनवेलप. वो क्या
खरीदते हैं वहाँ पे? ऐसे ही लेटर दे देंगे पोस्ट ऑफिस में? नहीं, वहाँ पे वो एक स्टैम्प खरीदते हैं और एक एनवेलप खरीदते हैं. कहाँ से? फ्रॉम द काउंटर. सी, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एनवेलप. ओके, इसके अंदर हम लेटर डालते हैं, अगर आप पिक्चर में देख रहे हो तो. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैम्प. सी चिल्ड्रन, स्टैम्प, दिस इज कॉल्ड स्टैम्प. ओके, सो हमें स्टैम्प लगाना पड़ता है लेटर पे. ओके, सो एट द पोस्ट ऑफिस चंपक एंड मदर बाय अ स्टैम्प एंड एन एनवेलप फ्रॉम द काउंटर. अब वहीं पे हमें स्टैम्प और एनवेलप मिल जाता है. सो फिर देखो, उसने उसमें स्टैम्प भी लगाया. अगर आप लेटर देखोगे तो उसमें उसने स्टैम्प भी लगाया है. यस, सी, एंड उसने एड्रेस भी लिखा है एनवेलप पे. करेक्ट. और ये नीचे क्या लिखा है अगर आप देखोगे तो, चंपक पुट्स द लेटर इनसाइड द एनवेलप. हिज मदर आस्क्ड हिम टू स्टिक द स्टैम्प ऑन द एनवेलप एंड राइट जॉन एड्रेस. किसका एड्रेस लिखना है? जिसे हम भेज रहे हैं. आपका एड्रेस नहीं लिखना है. चंपक ने किसको भेजा है ये लेटर? जॉन को. सो ही रोट द एड्रेस ऑफ जॉन एंड ऑल्सो पिन नंबर. ओके सर, चिल्ड्रन, पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, दिस इज एनवेलप, दिस इज स्टैम्प. Okay, without this we can't post letter. Then see children, mother, what is pin? Now Champak don't know what do you mean by pin number. So he asks his mother. What the mother gave the answer? See, pin or postal index number. See children, it is very important. The short pin is the short form. The full form of pin is postal index number. It is a unique 6-digit number children. Unique means उसकी तरह कोई नहीं, मतलब ऐसा पिन नंबर आपको और कहीं भी मिलेगा. Yes children, so this 6-digit number is used in post office numbering system. See children, this 6-digit number is very unique children, allocated to an area in a particular city to ensure that letter reach the correct post office there. Okay, so the post pin number is unique number. It is 6-digit number and it is allocated to an area. एरिया वाइज ये नंबर दिया जाता है इन अ पर्टिकुलर सिटी टू इंश्योर दैट, मतलब एक सिटी का किसी एरिया का एक पिन नंबर होगा, वैसा पिन नंबर किसी और एरिया का नहीं हो सकता. अंडरस्टूड? दैट्स वाई वी आर सेइंग यूनिक 6-digit नंबर. ओके, इन अ पर्टिकुलर सिटी टू इंश्योर दैट लेटर रीच द करेक्ट पोस्ट ऑफिस देयर. वो क्यों कर पिन नंबर होते हैं? क्यों क्या ज़रूरत है पिन नंबर की? एड्रेस भी हुआ तो चलता है. पिन नंबर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पिन नंबर्स हमें बताते हैं कि वो करेक्ट पोस्ट ऑफिस में जाए. अंडरस्टूड? वो लेटर करेक्ट जगह जाए. ओके, क्योंकि कभी कभी एड्रेस सेम हो सकते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में एड्रेस सेम हो जाते हैं, पर अगर हमारा पिन नंबर सही है तो वो करेक्ट जगह पे लेटर जाता है. अंडरस्टूड? एंड आफ्टर दैट ही ड्रॉप्स द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स. उसके बाद क्या किया चंपक ने? उसने वो लेटर कहाँ डाल दिया? पोस्ट बॉक्स में. लेट अस नाउ लर्न हाउ लेटर रीच देयर डेस्टिनेशन. अभी हम देखते हैं कि लेटर कैसे डेस्टिनेशन में जाता है. अभी पोस्ट ऑफिस में तो डाल दिया किसने? चंपक ने. अभी उसको वो लेटर जॉन के पास जाना चाहिए, तो अभी देखो जॉन के पास कैसे लेटर जाएगा. द लेटर आर कलेक्टेड फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स बाय अ पोस्टमैन. अभी पोस्टमैन आता है और वो लेटर कलेक्ट करता है पोस्ट ऑफिस से. एट द पोस्ट ऑफिस ईच लेटर इज स्टैम्प्ड एंड सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स डेस्टिनेशन. पोस्टमैन क्या करता है उसके बाद? देखो वो क्या कर रहा है, टेबल में बैठ के वो स्टैम्प लगाता है उस पर. स्टैम्प मतलब वो जो चंपक ने लगाया था वो स्टैम्प नहीं, उसके बाद एक सिक्का रहता है, वो स्टैम्प लगाता है और फिर अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन वो उनको सॉर्ट करता है. सॉर्ट करना यानी चीज़ों को डिवाइड करना. वो चीज़ों को अलग अलग करता है कि ये इस एरिया का लेटर है, ये इस पिन नंबर वाला लेटर है, ये इस पिन नंबर का लेटर है. ओके, सो द लेटर आर देन सेंड बाय एयर. तो लेटर किससे भेजे जाते हैं? एयर, रोड एंड रेल. ये 3 चीज़ों से भेजे जाते हैं. एयर यानी प्लेन से भी जा सकता है, रोड यानी कि अगर आप देखो कि बस रोड पे चलती है तो रोड से भी जाता है, रेल से भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द डेस्टिनेशन एंड द ओरिजिन. वो डिपेंड, कोई भी लेटर प्लेन से या
ट्रेन से या रोड से नहीं जा सकता, उसके लिए वो कितना दूर जाना है उस पे डिपेंड होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। ओके, अगर दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो वो ट्रेन से भी जा सकता है, अंडरस्टूड। या मेरे को सपोज मैं पुसद से किसी को उमरखेड़ लेटर भेज रही हूँ तो वो बस से भी जा सकता है, उसके लिए ट्रेन और प्लेन की ज़रूरत नहीं है। सो वो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, अंडरस्टूड। सो एट द डेस्टिनेशन द लेटर आर सॉर्टेड अगेन, फिर से वो जहाँ पे पहुँच जाता है। अभी जैसे मैंने उमरखेड़ लेटर भेजा है, या जैसे चंपक ने दिल्ली से गुड़गांव लेटर भेजा है, ठीक है। ओके, सो वो लेटर जहाँ पे भी उसने भेजा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे उसने लेटर भेजा है, अंडरस्टूड। सी द लेटर, इफ यू विल सी ही हैड रोट द एड्रेस, देखो गुड़गांव भेजा है उसने ये लेटर, करेक्ट। तो वो दिल्ली में रहता है, उसने वो लेटर भेज दिया गुड़गांव में। तो गुड़गांव में जाने के बाद पोस्टमैन उसको वापस से सॉर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द एड्रेस एंड पिन written on them. Then the postman then deliver the letter to the correct addresses. So see children, they are getting the correct addresses. Now children, what is this? This is a sign of telegram. Nowadays we are not using telegram. This is the fact children, that telegrams were earlier used to send short messages very quickly. People were charged for every word sent through a telegram. देखो लेटर को जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 दिन। अगर हम स्पीड पोस्ट करते हैं तो 3-4 दिन में पहुंच जाता है, अंडरस्टूड। बट टेलीग्राम ये बहुत जल्दी पहुंचता है, और ये इसमें बहुत शॉर्ट मैसेज भेजे जाते हैं। क्यों शॉर्ट मैसेज भेजे जाते हैं? क्योंकि हर वर्ड का चार्ज लगता है। अगर आप एक वर्ड लिखते हो तो एक वर्ड की पैसे आपको भरने पड़ते हैं, इसलिए कम शब्दों में हम भेजते हैं टेलीग्राम। अभी ये नहीं भेजा जाता, ये पहले भेजा जाता था। क्यों भेजा जाता था? कोई अर्जेंट न्यूज़ बतानी है किसी को तो हम टेलीग्राम भेजते थे। ओके, आफ्टर 163 ईयर्स द टेलीग्राम सर्विस वॉज डिसकंटिन्यूड इन इंडिया। इंडिया में 163 ईयर्स के बाद टेलीग्राम सर्विस डिसकंटिन्यूड कर दी है, मतलब अभी वो यूज़ नहीं करते हम टेलीग्राम। क्यों? ऑन 15 जुलाई 2013, 15 जुलाई 2013 के बाद से हम इसको यूज़ नहीं करते, एज वेरी पीपल वर यूजिंग दिस सर्विस। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम अभी आज के ज़माने में हम मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम अभी यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई टेलीग्राम, पहली बात तो हम क्यों भेजते हैं? हमें कोई अर्जेंट न्यूज़ देनी हो तो, पर वो जाने के लिए 1 दिन लग भी जाता है, और उसके लिए हमें पैसे भी भरने ज़्यादा पड़ते हैं। पर आजकल हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में हम 1 दिन का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ सेकेंड्स में ही, मिनट्स में ही हम मैसेज पढ़ लेते हैं, अंडरस्टूड। दैट्स वाई ये जो सर्विस है 163 ईयर्स के बाद टेलीग्राम सर्विस डिसकंटिन्यूड हो गई है इंडिया में, अंडरस्टूड चिल्ड्रेन। सो होप यू अंडरस्टूड द जर्नी ऑफ लेटर। थैंक यू चिल्ड्रेन, आई होप you understood all these things, whatever I taught you. See the telegram, I want to show you one telegram. See 2015 सितंबर, बट 2013 के बाद अगर आप देखोगे तो ये बंद है। ओके, तो ये देखो इन्होंने लिखा है टेलीग्राम सर्विस सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड विथ, देखो एकदम छोटा सा मैसेज है, बेस्ट विशेस फॉर सक्सेसफुल चैट, इंट्रो, पैराबिलिटी एंड योर ऑन गोइंग हैप्पीनेस, इतना ही मैसेज भेजा है। बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सर्विस बंद है। सो ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन द टॉपिक प्रॉपरली। थैंक यू फॉर लिसनिंग।